Okay, please start reading. What is the first question? Please read the first question. क्या है? The governor of a state is appointed by a president on the advice of the first option, Prime Prime Minister, Vice President, Minister, Chief Minister, Chief Minister, Chief Justice. Chief Justice, What is the correct answer? Prime Minister. Prime Minister plus Council of Ministers. Ministers. Please remember. So governor of a state is appointed by the president. Governor of a state is appointed by the president on the President. advice of Prime Minister plus Council of Ministers. plus मैंने खाली Prime Council Minister of भी लिखे तो काफी है. Ministers. ठीक है? समझ में आया? So who appoint? Yes, Governor sir. appoints. Governor is appointed by president President. on the advice of Prime Minister. Prime Minister. ठीक है? Please next person please. भाई पढ़ते जाओ आप लोग डायरेक्ट. The president gives his resignation to the Vice President. vice president. देखिए सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सबर रखो. ठीक है? The president gives the resignation to whom? President gives the resignation to whom? Vice President. Resignation to Vice President. Please remember. और similarly और एक कौन सा है? There is one more similar option. A speaker. Chief. Speaker gives resignation to. Speaker gives Deputy Speaker. Speaker gives resignation to Deputy Speaker. याद रखिए. ठीक है? Next पढ़ो. वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए ऑफिस में आते? 5 years. 5 साल. ठीक है? आर यू मेकिंग योर नोट्स? आर यू मेकिंग योर नोट्स? Yes, sir. So vice president, how many years does he come? 5 years. 5 years. और अगर राज्यसभा के मेंबर बने तो 6 years. 6 years. ठीक है? ये मालूम है. वाइस प्रेसिडेंट इज फॉर 5 years. उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए. Who among the following holds office during the pleasure of the president? लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. देखिए याद रखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? गवर्नर इज अपॉइंटेड ऑफ द स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ President. the Advice advice of of Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर. सेम फर्स्ट क्वेश्चन कनेक्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. माने जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहा वो गवर्नर रह सकता. जैसे प्राइम मिनिस्टर जाके बोल दिया प्रेसिडेंट को, भाई हमारा कोई नहीं होना, तो क्या करता उन्हें? व्हाट द प्रेसिडेंट विल डू? प्रेसिडेंट विल रिमूव द गवर्नर. ठीक है? समझ में आया? Until unless the prime minister wants that person to be the governor, he will be the governor. Otherwise, he will be removed by the president on the advice of the president. इतना याद रखिए, the president appoints and removes the governor on the advice of prime minister. Prime Minister. Please याद रखिए. ठीक है? Next, fifth question पढ़ो. Of any state, sir? Of any state. Of any state. Next. Please read. भाई रुके रहेगा क्यों? पढ़ते जाओ. 100 क्वेश्चन करना है आपने. Which of the following is not true regarding the payment of the employments of the president? Employment of the president. Next. Answer option 1. Option 1 A is correct है. They can be reduced during financial emergency. Yes. अगर पैसा नहीं है तो सबके सैलरी reduce कर देते. This is option 1 is correct. Next. The total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha. सुनो पहला कहाँ हुआ? क्वेश्चन पढ़ो बराबर. क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट हुआ वो?
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू बता रहा हूं उन्हें। क्वेश्चन 3 बार पढ़ना, ये तो गलतियां करके आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एमोल्यूमेंट्स टू द प्रेसिडेंट। क्या क्या गलत है, कौन सा गलत है मालूम करना है आपको। पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है। They can be reduced during a financial emergency. करेक्ट है, No. रिड्यूस कम कर दे सकते, करेक्ट है ये। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बता रहा हूं उन्हें। एक Okay. ऑप्शन रॉन्ग है, वो कौन सा रॉन्ग है पहचानो, बता रहा। जिसको मैंने रिड्यूस माने कम कर देना ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यस और यस और ट्रू और फॉल्स। Emoluments exactly means? एमोल्यूमेंट्स माने तनख्वाह, दैट्स ऑल, Okay, related to salary. रिलेटेड टू सैलरी। एमोल्यूमेंट माने सैलरी, दैट्स ऑल। सर इनका वो फंड में से देते हैं सर? कौन सा फंड? देयर आर टू फंड्स, यस। देयर आर टू फंड्स। कौन सा फंड? कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट एक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यस इससे ही देते हैं ना सर सैलरी इससे प्रेसिडेंट? देते। कंटिजेंसी फंड ये इमरजेंसी है, इसको हाथ नहीं लगाते जब तक कोई इमरजेंसी आई, जब तक इसको हाथ नहीं लगाते। तो ये रॉन्ग है। इंडिया जो प्रेसिडेंट की सैलरी है कौन से फंड से देते? कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से देते। कंटिजेंसी रॉन्ग है इधर, समझ में आ रहा? तो पहला स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। तनख्वाह देने के वास्ते पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, समझ गए? नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha is? So देखिए नॉर्मली पूरे देखिए, फॉर एग्जांपल 210 पहले लोकसभा में कितने सीट्स है? लोकसभा में कितने सीट्स है? 545. 543. टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 550। Okay. 2019 तक क्या थी? 2019 तक क्या थी? 552। 550. 552 उसमें से तो Please, एंग्लो इंडियंस को निकाल दिए। पहले 2019 तक कितनी थी सीट्स पूरे? 552. 552 उसमें से 550 और 2 नॉमिनेटेड थे, उसमें से 550 प्लस 2, ठीक है, ये याद रखो। 2020 से क्या हो गया? ये दो कैंसिल कर दिए, कितने हो गए? सिर्फ कितने बच गए? 500 550. 550 ये पूरे इलेक्टेड ईच है। इसमें से 530 स्टेट से आते और 20 यूनियन टेरिटरी से आते, ये लोकसभा हो गया। उसके बाद में 2020 अब ये क्या राज्यसभा में क्या है? व्हाट इज द टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा? व्हाट आर टोटल सीट्स ऑफ राज्यसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ सर कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की? ये लोकसभा की बात कर रहे हैं अपन। 250। राज्यसभा की कितनी है? 250। 250 उसमें से इलेक्टेड कितने हैं? 238 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है, 12 नॉमिनेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा आपने से उन्हें? पहले राज्यसभा में कितने रहते थे? 2 नॉमिनेटेड और सॉरी लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड और राज्यसभा में 12। अब ये दो कैंसिल कर दिए तो क्या बच गया? खाली पूरे नॉमिनेटेड कितने बच गए? 12 ही। अब ये जो क्वेश्चन पेपर बनाए ये पुराना है, ठीक है। सो इट हैज गिवन द आंसर एज 14। दिस 14 इज रॉन्ग, इट इज 12 बिकॉज जो एंग्लो इंडियंस है वो कैंसिल कर दिए, समझ में आ रहा?
एवरीवन? Yes, sir. Now, Yes. Rajya Sabha, ये अगर क्वेश्चन है तो सर इसमें आंसर 12 रहना सर, 12। नॉमिनेटेड। अब खाली राज्यसभा में बाकी है 12 नॉमिनेटेड पर्सन बस, ठीक है। लोकसभा में नॉमिनेशन कैंसिल हो गया पूरे, दो थे वो निकाल दिए, अब नहीं है कुछ भी, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग, ये क्या है, रॉन्ग है। अब आंसर क्या रहता, 12, तो ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president? फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट President of कंस्टिट्यूट, India. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन साथ देते, कौन कौन इलेक्ट होते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन आते, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन आते? इलेक्टेड मेंबर्स elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. लोकसभा प्लस Rajya Sabha. राज्यसभा प्लस Legislative Assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली एंड ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, याद रखिए। Okay, sir. इलेक्टेड, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। Elected member of the Lok Sabha, elected member of the Legislative Assembly of each state, elected member of the Legislative Council, elected member of the Rajya Sabha. सर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के रहते ना सर इलेक्टेड मेंबर्स? हाँ, दो भी इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? क्वेश्चन 3 बार पढ़ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट, डज नॉट, No. क्वेश्चन बराबर पढ़ना, डज नॉट कंस्टिट्यूट, जो शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो पहले आपको मालूम है ना कौन कौन शामिल रहते, हाँ. क्या Elected इलेक्टेड member of- मेंबर्स शामिल रहते? Yes. यस। क्या इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के शामिल रहते? Yes. क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल के शामिल रहते? नो। No. क्या राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स शामिल रहते? Yes. यस। तो क्या अपना आंसर क्या है? 6। Elected members of the legislative council. नहीं रहते, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होते ही नहीं, ठीक है, नॉमिनेटेड रहते लोग। तो सिर्फ और सिर्फ असेंबलीज के ही लोग शामिल रहते हैं उसमें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट Yes, 8 sir. पढ़िए। प्लीज रीड। आज ही कौन ज्वाइन करे क्लास? whose first class is this? सबसे फर्स्ट टाइम आज क्लास कौन ज्वाइन करे? एनीवन हियर? हेलो हेलो, कोई ज्वाइन करे फर्स्ट क्लास आज? जी सर। फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम नहीं है, ज्वाइन करता है। ओके, ठीक है, चलिए पढ़िए। 8 क्वेश्चन पढ़िए। The council of the minister is in a parliament type of government can remain in office till in enjoying support of the जब तक मेजॉरिटी रही लोकसभा में, जब तक ऑफिस में रह सकते, समझे? yes sir। बस इतना याद रखो, जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी रही,
जब तक उन लोग ऑफिस में रह सकते। लोअर हाउस माने लोकसभा, ठीक है, ओके क्लियर। लोकसभा। सर। 9 क्वेश्चन पढ़िए। Which of the following appointment is not made by the President of India? इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। India. क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कौन अपॉइंट करते हैं? Defense प्रेसिडेंट। President. प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? नो। No. स्पीकर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ ऑफ एयर फोर्स। स्पीकर ऑफ लोकसभा को कोई भी अपॉइंट नहीं करते, याद रखिए। Yes, ही sir. इज सेलेक्टेड बाय द हाउस इटसेल्फ। लोकसभा के ही जो मेंबर्स रहते हैं उन लोग ही सेलेक्ट करके कुर्सी पे बिठा देते हैं उसको, कोई अपॉइंट नहीं करते स्पीकर को, याद रखिए। नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये प्रेसिडेंट तो सबको अपॉइंट करता, प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता बोले क्या क्या देते आंसर? Governor and Parliament. Prime Minister. मेरे को क्वेश्चन बराबर सोच के जवाब दिया। मैं प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करता है। Elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assembly. नहीं भाई, अपॉइंट सेलेक्ट इन लोग करते, अपॉइंट कौन करते? Chief Justice. Chief Justice of India. नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखिए। प्रेसिडेंट को कोई भी अपॉइंट नहीं करते, कसम खिलाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट उसको अपॉइंट Yes. कोई भी नहीं करते, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुआ है, क्या है आर्टिकल का प्रेसिडेंट का? आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को कोई भी अपॉइंट नहीं करते, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 52 में, एक प्रेसिडेंट रहे ना, उन्हें सबको अपॉइंट करता, लेकिन उसको कोई अपॉइंट नहीं करते, याद रखिए। खत्म खिलाते बट अपॉइंट नहीं करते, उसको सेलेक्ट करते ये लोग मिलके पूरे, ठीक है। इनडायरेक्ट अच्छा। सिलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज पढ़िए, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who appoints the Prime Minister of India? क्या है वो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सिंपल आंसर, President. प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल। President. all the ministers are appointed by prime minister, are appointed by president on the advice of prime minister, ठीक है। Yes. all the ministers except prime minister, all the ministers are appointed by president, even the prime minister, and all other ministers are appointed by the president on the advice of prime minister, ठीक है। समझ में आ रही Yes, बात? sir. नेक्स्ट प्लीज रीड। The first woman governor of India, governor of a state इन फ्री इंडिया, free India was सरोजिनी नायडू, सरोजिनी Sarojini Naidu. The Naidu. first woman governor of a state in free India is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is also known as Nightingale of India. लिख लीजिए। Those who doesn't know, please write down there. Nightingale of Yes. India. Nightingale of India. समझ में आ गया? उसके बाद में द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन ये तो क्या है, सरोजिनी नायडू अपना आंसर है, लेकिन Yes, व्हाट sir. अबाउट इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट Prime वुमेन Minister. प्राइम मिनिस्टर। Woman इंदिरा गांधी Prime इज द Minister. फर्स्ट वुमेन Woman प्राइम Prime मिनिस्टर। Minister. हु इज द विजय लक्ष्मी पंडित? विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? सिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru. पंडित जवाहरलाल नेहरू। Yes. सुचित्रा कृपलानी is the chief minister, is the first woman chief minister of any state, याद रखिए। Who is the इंदिरा गांधी? Yes.
First woman Minister. First Prime woman Minister. Prime Minister. Who is Vijay Lakshmi Pandit? Sister of Sister Pandit of Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru. She went to UNO. She went to UNO, United Nations UN. Organization. उसके बाद हुई सरोजिनी नायडू, First Sarojini. woman governor of India. फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया. हुई सुचित्रा कृपलानी. सुचित्रा कृपलानी कौन है? हेलो, सुचित्रा Chief कृपलानी Minister कौन of है? any state. Chief Minister वुमेन of any सीएम, state. वुमेन सीएम ऑफ एनी स्टेट. फर्स्ट Any वुमेन सीएम state. ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, Yes sir. क्लियर? Yes sir. Clear. सो नेक्स्ट प्लीज. सरोजिनी नायडू को क्या बोले थे? इंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ठीक है, सोनिया Yes, sir. प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो, है उधर? आर यू देयर और नॉट? Sir, हम पढ़ना. एक मिनट सबर. अरे कौन कौन है उधर, कौन कौन नहीं है? लॉगिन के लिए चले गए. हम है सर. प्लीज रीड. आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट. प्लीज रीड. 12th क्वेश्चन पढ़िए. Minimum age required to contest for presidency is कितने साल रहना, कितने बूढ़े रहना? 35 years sir. 35. 35 साल के बूढ़े रहना प्रेसिडेंट बनना बोले थे. ठीक है, लिमिट कुछ भी नहीं है ना सर, मतलब रिटायरमेंट. नहीं रिटायरमेंट कुछ नहीं है, बट कितने बूढ़े रहना? 35 years old. 35 साल के बूढ़े होना तो प्रेसिडेंट Yes, बन sir. सकते. ठीक है, नेक्स्ट Yes sir. 13 क्वेश्चन पढ़िए. 13th. The charge of impeachment against the President of India for his removal can be preferred by प्रेफर्ड बाय both both houses houses of of the parliament. parliament. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. देखिए जब इलेक्शन होता ना प्रेसिडेंट का, ये लिख लेके रख लीजिए. जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता, कौन कौन पार्टिसिपेट करते इलेक्शन में? इलेक्टेड Both मेंबर्स, Elected. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. समझ में आ गया? Yes, sir. लेकिन जब रिमूवल की बात आती, जब रिमूवल की बात आती तो इलेक्टेड भी आते प्लस नॉमिनेटेड भी आते. Both the house of बोथ द हाउसेस. अब तो लोकसभा में नॉमिनेटेड है नहीं, राज्यसभा में नॉमिनेटेड है खाली. ठीक है, ये याद रखिए. जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग हम पार्टिसिपेट करते. जब रिमूवल की बात आती तो कौन पार्टिसिपेट करते? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड. इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट, इट इज कॉल्ड एज Impeachment. इम्पीचमेंट. एक हाँ, ऑफिशियल को निकालना है तो Parliament पार्लियामेंट. पार्लियामेंट किससे? पार्लियामेंट में कौन सा अहुदे है? पार्लियामेंट बोथ अहुदे, लोकसभा प्लस राज्यसभा. ठीक है, प्लीज रीड द 14th वन. Okay. The The chief minister of a union territory where such a setup exists is appointed by the The chief minister of UT setup exists appointed by whom? Governor. लेफ्टिनेंट गवर्नर. Lieutenant Governor. लेफ्टिनेंट गवर्नर. Governor. ठीक है, यूटी का सीएम को कौन अपॉइंट करते? लेफ्टिनेंट governor. गवर्नर. ठीक है, कितने यूटी से अपने पास आओ? हेलो, Yeah. सर ये स्टेट्स में आता है इसलिए इसको
अंडर गवर्नर और ये इसमें हाँ, कैटेगरी देखिए। में है। सुनो, अगर स्टेट है तो खाली गवर्नर, अगर यूटी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नाम बदलने के वास्ते, खाली जिस अलग होने के वास्ते, दैट्स ऑल। सीएम को कौन अपॉइंट करते? गवर्नर, इतना याद रखो बस, ठीक है। अगर यूटी है तो लेफ्टिनेंट, एलटी लगा लो पीछे, क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद Who was the first prime minister of India? जल्दी बोलो, 1 सेकंड भी नहीं जवाहरलाल लगाना। नेहरू। पंडित जवाहर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। Nehru. Who was Mrs. Indira Gandhi? First woman First prime woman minister. Prime Minister of India. Minister of Woman India. Prime PM of. Minister of India. Who is the Rajendra Prasad? President of India. First president First of India. president. First president of Who is India. the Mahatma Gandhi? महात्मा गांधी. Constitution में नहीं पढ़े सर बीमार। महात्मा गांधी कौन है? Father of nation. Father of the nation, that's all. Yes sir, yes sir. पावर रहे तो ऐसा महात्मा गांधी कैसा रहना, कोई पोस्ट नहीं है। महात्मा गांधी को नाम नोबेल अवार्ड मिला, कोई पोस्ट नहीं मिला आज तक। भारत रत्न भी नहीं दिए ना महात्मा गांधी को। क्यों सर? भाई ही इज बियॉन्ड, कई को बोले तो अब एक पजल है ये, कई को नहीं दिया अभी तक। कहीं को नहीं दिया. जब इतना नहीं था ना सर। He is beyond any award. He has become the father of the nation. इतना बड़ा लक़ब दे दिए। ये अवार्ड्स क्या है? बस एक नाम है। ये अवार्ड्स इधर है, दोनों किधर है? आसमान में है। He is beyond all these awards and everything, recognition. He is something else. ठीक है? So, father of the Nation. महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। रहे तो ऐसी पावर रहना, कुछ भी नहीं रख के भी सबको कंट्रोल करना। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। In case a president dies while in office, the vice president can act as a president for a maximum period of. In a president dies while office, president can act as a president for maximum period of 6 months. 6 months. याद रखिए, 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट Then आ जाना, appoint. ठीक है। Yes sir. 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट को पूरे प्रोसेस हो जाना, अगर वक्त से पहले डेथ हो गई तो, ठीक है। विच इज द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस? विच इज द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस? APJ Abdul. नहीं, अब्दुल कलाम रिटायर्ड एज अ प्रेसिडेंट, उसके बाद में ही डाइड। जाकिर हुसैन, Zakir Hussain. जाकिर हुसैन, एंड हु वाज वन मोर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन के बाद जो मुसलमान थे, दे डाइड इन ऑफिस। इंदिरा गांधी के टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम? प्रेसिडेंट ड्यूरिंग फखरुद्दीन अली अहमद, वो डाइड इन ऑफिस, याद रखिए। फखरुद्दीन अली अहमद एज वेल एज जाकिर हुसैन डाइड इन ऑफिस। और कितने, अगर कोई प्रेसिडेंट डेथ हो गई ऑफिस में, तो कितने महीनों के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो जाना? 6 months के अंदर. 6 months. 6 months. Please remember. Okay. Next. Please read. 17. The Union Council of Ministers consists of Cabinet Minister, Minister of State, and Deputy Minister. So सबसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, सबसे ऊपर पहले पीएम रहते। सर Union- ये यूनियन काउंसिल एग्जीक्यूटिव, ये सब इसमें बहुत कंफ्यूजन है सर। यूनियन काउंसिल किसको बोलते हैं? हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्लस नाम मिनिस्टर आया ना, वो यूनियन का काउंसिल का है, याद रखो। नाम है मिनिस्टर, इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट्स ऑल। कौन कौन रहते? यूनियन माने सेंट्रल लेवल। यूनियन मीन्स व्हाट?
एट Central level. सेंट्रल लेवल, दैट्स ऑल। सेंट्रल लेवल पे कौन रहते हैं? पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन रहते हैं? कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। समझे? Yes. नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे। Who administers the oath of office to the President of India before he enters upon the office? तो प्रेसिडेंट को खसम कौन खिलाते? Chief Justice, Chief Justice of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। India. ठीक है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपॉइंट नहीं करते, खाली खत्म खिलाए तक ही। समझ में आ गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 19 क्वेश्चन प्लीज। Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister of the Indian Union? कौन है? Deputy Chairman of the Planning Commission. अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, प्लानिंग कमीशन के जगह पे कौन आ गया? नीति आयोग. नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन गया, प्लानिंग गया, नीति आयोग आ गया। ठीक है, जिधर जिधर प्लानिंग कमीशन आता उधर क्या कर लेना आप? नीति आयोग सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो कैबिनेट रैंक किसका रहता? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसका चेयरमैन कौन है? Who is the chairman? Prime Minister. Prime Minister is the chairman. Deputy chairman will have a rank of cabinet minister. अब चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? Who is the chairman of नीति आयोग now? जल्दी बोलो। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कल ग्रुप में डाले थे। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? प्राइम मिनिस्टर। Who is the deputy chairman of नीति Narendra आयोग? Modi. डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन? Suman Berry. सुमन बेरी। सुमन बेरी याद रखिए, प्लीज राइट ऑन योर नोट्स। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज सुमन बेरी। कोई है सुमन इधर? कोई है? नहीं है? कोई फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कोई नाम है सुमन के इधर? रिंगा सिस्टर इज सुमन बेरी। तो ऐसा याद रखिए। Sir, Who is the Vice chair- Chairman. Who is the deputy Yes. chairman of नीति आयोग? Suman Berry. सुमन बेरी। Sir, Vice Chairman. वाइस चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन एक ही है। कभी वाइस पूछता, कभी Yes. डेप्यूटी पूछता। सुमन बेरी। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज रीड नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of 6 months. कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लेकिन मिनिस्टर बनाना चाह रहे तो क्या बन सकता? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है लेकिन मिनिस्टर बनाना चाह रहे उसको, क्या बन सकते? ना बन सकते? नहीं बन सकते सर। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को? अरे सॉरी सर, हाँ बन सकते सर। फॉर प्रेसिडेंट दे नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर। अगर किसी को मिनिस्टर बनाना चाह रहे, मिनिस्टर आपको बुलाए, प्राइम मिनिस्टर बुलाए आपको कि भाई जरा मिनिस्टर बनो बोल के, तो बन सकते? नहीं बन सकते? बन सकते सर। बन सकते, लेकिन कितने पीरियड तक? 6 महीने के अंदर। खाली कितना पीरियड है वो? 6 months. 6 महीने 6 तक ही। months. अगर 6 महीने के अंदर आप क्या है अपॉइंट हो जाना कोई भी मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा बोल के। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह के भी मिनिस्टर बन सकते, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कब तक रह सकते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। 6 months. समझ गए? नेक्स्ट प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21. एक मिनट, कोई एनीवन एल्स? सुमन प्लीज रीड।
Sorry, When Sonia. can a president use his Okay, please read. when can a president use his discretion in appointing the prime minister? पढ़िए. Please read When the no whole political- पूरे question पूरे option पढ़िए. When no political OT enjoys a clear majority in the Lok Sabha, only when the Lok Sabha has been dissolved. In all circumstances, in no circumstances. Answer is when no political OT enjoy a clear majority in the Lok Sabha. This in the previous classes I have explained you in detail. फिर से नहीं जाता हूँ इसमें. Next, 22nd question please. Please read. If in a country there happens to be an office of monarchy as well as parliamentary form of government, this monarch will be called head of the state, head of the cabinet, head of the government, both head of government and state. Now this Answer monarch is will be head of called the as state. head of the state. Head of the state. Example, UK. UK में कौन है? Crown. Example, Crown. UK. और जापान. जापान में भी कौन है? राजा है. He is a monarch. He is a monarch. The monarch is a head of the state. इंडिया में क्या है वैसे? प्रेसिडेंट है. Who is president in India? President is क्या है? President. Head of state. Head of the state. Prime minister क्या है? Head of government. Head of government. Right. Very good. Next, 23rd question, please. Please read. Please read. If I say read, तो आप लोग खामोश क्यों बैठते हैं? Are you getting my voice? Hello? Hello? Yes, sir. भाई खामोश क्यों हो गए? जब आप कंटिन्यू कर रहे तो कंटिन्यू करना है आपको. Please read. One feature distinguishing the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad is power of impeachment, indirect election, nomination of members, tenure of membership. Answer is power of impeachment. Power of impeachment. माने it is asking the Rajya Sabha at the central level and the assembly. क्या है दोनों में फर्क? Power of impeachment माने विधानसभा को impeachment का पावर नहीं है. माने at state level. राज्यसभा is at state level and विधान परिषद is at राज्यसभा is at central level, union level, and the विधान परिषद is at central level. विधान परिषद के पास क्या नहीं है? पावर ऑफ इम्पीचमेंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट 24th question. Chief ministers of all the states are ex officio members of the Planning Commission, National Development Council, Interstate Council, Finance Commission. Answer is Interstate Council. Interstate Council. Chief Minister of all the states are ex officio members of Interstate Council. So Planning Commission क्या बन गया अब? नीति आयोग. नीति आयोग. Who is the chairman of नीति आयोग? Vice chairman of नीति आयोग? Chairman is President of India. Prime Minister. इधर है शाहना. Chairman कौन है? Chairman is Prime Minister. Prime Minister. Vice chairman कौन है? Suman Bedi. Suman Bedi.
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कैंसिल हो गया। प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कैंसिल कर दे के क्या बना है, नीति आयोग को बना है। आयोग सर ठीक है। दोनों मिला के एक ही है सर। दोनों मिला के एक को बना दिए, दोनों मिला के एक ही बना दी। ठीक है। अब इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल क्या है, 263, प्लीज राइट डाउन देयर। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल इज 263। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है, 280। इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल, व्हाट इज द आर्टिकल फॉर इंटर स्टेट काउंसिल? 263. 263. Yes, Who is sir. the chairman of इंटर स्टेट काउंसिल? Suman Berry. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, क्या दे रहे जवाब आप? चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कौन है? नीति आयोग. चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल कौन रहता? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर. यस सर. कौन सा आर्टिकल में है लिखे हुआ? 263. 263। Yes, फाइनेंस sir. कमीशन का आर्टिकल क्या है? 280. 280. 280। अब कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा? 15th फाइनेंस कमीशन। हु इज द हेड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? N.K. Singh. Who is the head of 15th फाइनेंस कमीशन? NK Singh। N.K. Singh। कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का? 280। 280। समझ गए? नेक्स्ट Bullet 25. Who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India? Speaker, President, Prime Minister, Parliament. Answer is President. आंसर इज प्रेसिडेंट। ठीक है। वह आखिरी में कौन, किससे किसको राइट है पब्लिक मनी हासिल करने का, पब्लिक मनी लेने का? सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, पार्लियामेंट अप्रूव करती, प्रेसिडेंट साइन करता। प्लीज रखिए। ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूव करती और प्रेसिडेंट लास्ट में अप्रूव होता, उसका साइन करता। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन प्लीज। Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? He must not be a member of either House of Parliament. He should be a domicile of the state to which he is being appointed. He should be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. Answer is, he should be a domicile of the state to which he is being appointed. माने ही इज नॉट एन एसेंशियल बोल रहा हूं मैं, प्लीज रिमेंबर, नॉट एन एसेंशियल। माने केरला का गवर्नर, केरला का आदमी यूपी का गवर्नर बन सकता, यूपी का आदमी क्या बोलते हैं तेलंगाना का गवर्नर बन सकता। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि गवर्नर बनना बोले तो वही स्टेट से आना, इधर का भी आदमी कौन सी भी स्टेट का गवर्नर बन सकता, प्लीज याद रखिए। ठीक है। ये भी करेक्ट है। क्या बोले? हेलो, एज पूछते सर। एज का सवाल नहीं है कुछ भी इधर। ठीक है। ये भी करेक्ट है, दिस इज राइट। ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्या रॉन्ग है? ही शुड बी डोमिसाइल। वो स्टेट का रहना जरूरी नहीं है गवर्नर बनना बोले। इंडिया तेलंगाना गवर्नर कौन है? Who is the तेलंगाना गवर्नर? Tamilisai Thakarajan. Tamil Sai belongs to which state? Tamil Nadu. But she is the governor of तेलंगाना। तो तेलंगाना का रहना जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। The president nominates 12 members of the Rajya Sabha according to their performance as office bearers of cultural societies, the recommendations made by the vice president, their role played in political setup of the country, their distinction in the field of science, art, literature, and social services. Answer is
the distinction in the field of science, art, literature, and social service. So पूरे राज्यसभा में कितने मेंबर्स है? 250. 250 मेंबर्स है, उसमें से इलेक्टेड कितने हैं? 238. 238. नॉमिनेटेड 238. कितने हैं? 12. 12. कौन से फील्ड से नॉमिनेट होके आ रहे हो लोग? साइंस, आर्ट, Science, art, literature, and social service. सोशल सर्विस. प्लीज रिमेंबर, साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड Social सोशल service. सर्विस. ठीक है, Yes. ये याद रखिए. पूछता हूं मैं, कौन से फील्ड है? साइंस, आर्ट, Art. लिटरेचर एंड Social सोशल service. सर्विस. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट we'll do 33 questions and we'll wrap up the class. 28 पढ़िए. Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and ameliorative measures? कौन सा आर्टिकल है Art- बैकवर्ड क्लास कमीशन के वास्ते? आर्टिकल नंबर 340. 340. इंपॉर्टेंट है. बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल नंबर 340. 40. ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट 29th one. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? Either House of Parliament, any Vidhan Sabha, only Lok Sabha or Rajya Sabha? Answer So- is either House of Parliament. एनी ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या तो ईदर माने क्या? ईदर दोनों में. पेरेंट्स पढ़े थे, मदर या फादर. इधर हाउस ऑफ द Yes, sir. पार्लियामेंट माने या तो लोकसभा या और Rajya Sabha. Rajya Sabha. राज्यसभा. ठीक है, नेक्स्ट 30th. Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? Lal Bahadur Shastri, Charan Singh, Morarji Desai, Indira Gandhi. Answer is Indira Gandhi. इंदिरा गांधी. सो इंडिया में प्रेसिडेंट बनना है तो आप लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी आ सकते. ठीक है, लोकसभा से आना बल्कि जरूरी नहीं है. ठीक है, समझ रहे? तो इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर बनना बोले तो कौन से हाउस से आना है? Rajya Sabha. Rajya Sabha. कौन से हाउस से आ सकते? कोई भी लोग- हाउस. कोई भी हाउस से आ सकते. राज्यसभा. इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है रहता आंसर. इन इंडिया ए मेंबर कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर. लोकसभा, फ्रॉम राज्यसभा. ऑप्शन सी, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो क्या आता आंसर आपका? Either House of Parliament. इधर Either या तो house of लोकसभा में आ parliament. सकते, राज्यसभा से भी आ सकते. हाँ, ठीक है, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन. What is the minimum age for appointment as a governor? 35 years, 40 years, 25 years or 30 years? तो कितने साल रहना Answer is गवर्नर बनने के 35 लिए? years. 35 years. 35 years. प्रेसिडेंट के लिए कितने होना? 35 years. 35 years. years. गवर्नर के लिए भी कितने होना? 35 years. दोनों का सेम है? Yes. यस और नो? Sir, Chief Minister के लिए Yes, sir. चीफ मिनिस्टर का कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. चीफ मिनिस्टर का कुछ Prime भी नहीं. Minister, Chief Minister के लिए no age, sir. नो एज, कभी बन सकते. लेकिन लोग अरे तो घर पे तो आना, घर में तो भी आना कम से कम. दे हैव टू बिकम द मिनिस्टर्स फर्स्ट. हाँ. दे हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. और एमएलए या बनना है या एमपी बनना है. पहले एमएलए बनने के लिए तो एज होना है, एमपी बनने के लिए तो 25 एज होना है. तो वो काम आती है. ठीक है, नेक्स्ट 32 वाला. Chief Minister of the state is responsible to Prime Minister, Rajya Sabha, Legislative Assembly, Governor. Answer is Legislative Assembly. So please write down in your notes there. Prime Minister is responsible to. Prime Minister plus COM. Prime Minister plus COM. Responsible to lower house, that is Lok Sabha. अगर क्वेश्चन आया आपको
Prime Minister or Council of Ministers is responsible to which house? Lok Sabha. Lok Sabha. ठीक है. और CM plus Council of Minister is responsible to which house? Legislative Assembly. ठीक है. अगर CM की बात हो रही तो Sir, Legislative yes, Assembly. CM, Prime Minister, Council of Minister, हाँ. Chief Minister plus Council of Ministers. यस. जैसा अपना KCR है ना, Okay. KCR के मिनिस्टर हैं इधर, जी CM कोई मिनिस्टर्स है, वैसा PM कैसे मिनिस्टर्स है, KCR कोई मिनिस्टर्स है. स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली रहती, यूनियन लेवल पे लोकसभा रहता. ठीक है, समझ गए? यस और नो? Yes. Yes, yes, sir. sir. So PM plus Council of Ministers is responsible to Lok Sabha. CM plus Council of Ministers is responsible to Rajya Sabha. ठीक है? Yes or no? Yes, sir. Next, 33 question. The administrative and operational control of the armed forces is exercised by the Cabinet Committee on Political Affairs with Prime Minister as the chairman, Minister of Defense, 3 chiefs of the Army, Navy and Air Force staff or President. Answer is Minister of Defense. Answer is Ministry of Defense. Defense. माने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में रहता? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. Who is the Defense Minister of India? Who is the Defense Ministry of India? Rajnath Singh. राजनाथ Rajnath Singh. राजनाथ सिंह. याद रखिए, राजनाथ सिंह के हाथ में क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. 34th क्वेश्चन पढ़ो. Please read the 34th. What is the position of a Minister of State in the central government? क्या है? Option C. He is a Minister of Central Government but not a member of the Cabinet. He looks after the interest of the State Cabinet. He is the nominee of the State Governor. He is the nominee of the State Cabinet. Answer is he is a Minister of Central Government but not a member of the Cabinet. Not a member of the Cabinet. कैबिनेट. ठीक है, तो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके? Circle. एक सर्किल है. सर्किल क्या है ये? व्हाट इज सर्किल? पार्लियामेंट. Parliament. ठीक है, ये पार्लियामेंट क्या है? एक अपोजिशन है. ये क्या है? गवर्निंग Government. गवर्निंग पार्टी. रूलिंग पार्टी और गवर्निंग पार्टी. Governing party. इसमें से और हिस्से होते. ठीक है, इसमें से एक और हिस्से होते. पूरे के पूरे मिनिस्टर्स नहीं रहते. पूरे के पूरे मिनिस्टर्स नहीं रहते. इसमें से ये क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये हिस्सा क्या है? ये तो ऑपोजिशन हो गया. ये पूरा हिस्सा क्या है? रूलिंग पार्टी का हिस्सा होगा. ये दो भी गवर्निंग पार्टी का. इसमें से ये क्या हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Council of Ministers, Cabinet Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? काउंसिल ऑफ Council of Ministers. Ministers. उसमें से भी और एक छोटा हिस्सा होता, उसको बोलते. ये क्या है? Cabinet. ये क्या है? कैबिनेट. ये क्या है? Cabinet. कैबिनेट. कैबिनेट में कौन कौन रहते? PM प्लस मिनिस्टर्स. 6 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स रहते. ठीक है, कैबिनेट एकदम छोटा रहता. कैबिनेट से बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बड़ा गवर्निंग पार्टी और रूलिंग पार्टी.
पूरा मिला के क्या बोलते हैं? Parliament. Parliament. पार्लियामेंट। ठीक है, कैबिनेट बहुत ही छोटा हो सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम 80 हो सकते बस उसमें। ठीक है, 80 में से और एक 8 को सेलेक्ट करते, उसको बोलते कैबिनेट। समझे? Okay. Yes, sir. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते तो इसमें दो तरीके के रहते। इसमें मिनिस्टर्स रहते, मिनिस्टर में एक कैबिनेट मिनिस्टर रहते और एक क्या रहता, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। माने स्टेट के लिए एक एक, ये तेलंगाना के लिए देखना है तो तेलंगाना के लिए एक आदमी को अपॉइंट कर देते, इसको बोलते मिनिस्टर ऑफ स्टेट, State. यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। Yes, समझ sir. में आ गया? इफ आई एम ड्राइंग द डायग्राम, टेल मी। ये क्या है? Parliament. पार्लियामेंट। ये हिस्सा क्या है? Opposition party. Opposition party. ये अपोजिशन है। ठीक है, ये क्या है? रूलिंग पार्टी। Ruling party. Yes, ठीक है, sir. रूलिंग पार्टी में क्या है? फिर और दो हिस्से होते, ये क्या है? खाली एमपीस है। ये क्या है? खाली एमपीस है। MP. ये कौन है? दिस इज ऑल एमपीस। ठीक है, ये क्या बना दो? मिनिस्टर बना दो। ये पूरे मिनिस्टर्स रहते हैं इसमें। कितने रहते? 80 से ज्यादा नहीं रहते मिनिस्टर्स। उसके अंदर भी फिर क्या रहता? 8 ये क्या members है? of cabinet ministers. ये Cabinet. कैबिनेट है। ठीक है, ठीक है, कैबिनेट के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बड़ा पूरे एमपीस, फिर दोनों को मिला के पूरे को क्या बोलेंगे आप? Parliament. पार्लियामेंट। समझे? Yes, sir. So these are the 34 questions. Inshallah, by this I conclude my class today here. समझ में आई क्लास आज की? Yes, sir.